हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड कीपिंग योर सेल्फ वेरी मच प्रोटेक्टिव ड्यूरिंग दीज पैंडेमिक टाइम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज एज वेल. ऑल राइट, सो अपने घरों में रहो, अच्छे से रहो. ऑल राइट, है ना. टेक ऑल दी नेसेसरी प्रिकॉशंस. ऑल राइट, एंड हियर आई एम डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, डॉक्टर गीत. ओके, वेलकमिंग यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव. ठीक है, टीटीवी के प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब लोग को ऑलरेडी पता है, बट देन अगेन आई फील वेरी मच प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस दो स्टूडेंट्स जो कि अभी नए हैं, एंड अगेन giving the information back to the students who are already tuned with us since long. Okay, so guys, TTV Talking Textbooks is a platform which is getting you prepared not only for your school examinations but also for your Olympiads and then examinations such as NTSC, NSCJS and PRMO. बच्चों, why am I telling you all this? See, school examinations definitely are important to crack, right? But then again, अगर आपको अपना knowledge थोड़ा सा और enhance करना है, अपना width जो है in the this world of knowledge, right? थोड़ा सा आपको और expand करना है. If you wanna accentuate your own self, okay, make it more special from the crowd, okay. So for that, what you need is अगर आप चाहते हो थोड़ा सा अपना ज़्यादा हर तरीके से खुद को इन्हांस करना, सो सच एग्जामिनेशंस डू हेल्प यू अ लॉट, राइट? सो टीटीवी इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज alongside your school examinations as well. And then there is me, your biology teacher, here to help you in your biology sessions. ठीक है, and yeah, so also I'll make sure that you start loving biology a lot. I know you guys do. ठीक है, बहुत लोगों का biology favorite subject भी होगा. Like for me it was forever, since forever. ठीक है, so yeah, so moving ahead with this is something you know already, right? So this is the excellent team of TTV here to guide you in your journey throughout, okay? जिसके ऊपर आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं when it comes to your school examinations, your other examinations and all. So TTV's team is always there to guide you. Then this is something about me, right? For the students who are new, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? And बाकी मेरे बच्चे मुझे जानते ही हैं, ठीक है? And जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत जल्दी आप मुझे जान जाएंगे. So here we go. Now this is something very important for the newbies and for हमारे पुराने बच्चे. Already जो लोग जानते हैं, this is the handle of TTV. ओके, यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के लिंक्स दिए हुए हैं बच्चों, फर्स्ट 6 to your 10th. ठीक है, ये चैनल है, यहाँ पे आपको टीटीवी का सारा सैम्पल मटेरियल जो भी है वो अवेलेबल होता है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ स्नीक पीक एट दैट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, you want to know more, you want to go deeper, okay, you want to study it further, so what you can do is you can just go and visit www.talkingtextbooks.in. then you've got two packages for you, whatever suits you the best. लाल वाला या फिर पर्पल वाला, किसी को कलर के अकॉर्डिंग देखना है तो वो ऐसे देख सकता है. ठीक है, एनीवेज दैट वाज अ जोक. ओके, सो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट लुक हियर. यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन क्लिक दी बाय नाउ. देन यू गॉट एवरी पॉसिबल पेमेंट मेथड फॉर यू गाइज एज वेल, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी बीच में कोई आपको रोड़ा ना हो. ठीक है, आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, टू गेट यू देयर. ओके, एंड then you've got your credit card, your debit card, net banking and your wallets. All right, and if you want the 30% instant discount, you can use my code GSLive. ठीक है, so moving ahead guys, if I talk about TTV, then see, this is something our students are already acquainted with, isn't it? So I always tell you before the classes, it's not a promise you make to the other on anybody, किसी को दिखाने के लिए ही करना होता है. So this is a promise we make to ourselves, isn't it? Like, yes, we would be extremely sincere, extremely, and that would ultimately lead us, make us as a smart student, isn't it? I know my kids are already smart, but then again, moving with the rituals ahead, I promise to listen to the complete lecture.
and make proper notes of it so that I can become a smart student. Alright, so guys, moving ahead. ठीक है, बच्चों हम लोग सॉइल के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, है ना. सो बेसिकली हमने देखा सॉइल जो होता है दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, isn't it? So we know about it, right? We discussed lot many factors. ठीक है, हमने सॉइल के क्लासिफिकेशन, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा था एंड लॉट मच, राइट. सो इन केस इफ यू हैव मिस्ड देन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस मैं हमेशा फोकस करती हूँ बच्चों बेसिक से जाओगे अच्छे से समझ आएगा. ओके, अगर कहीं बीच में कूदने की कोशिश करोगे समझ नहीं आएगा. गेटिंग माई पॉइंट. माई स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड आई नो यू गाइज आर नॉट मिसिंग एनी, राइट. सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल की दुखद कहानी. क्या पढ़ेंगे? दुखद कहानी. मतलब कि क्या तकलीफ है सॉइल को, राइट. एग्जैक्टली बेचारा इतना भोला भाला सा एक प्राणी है जो हमें इतना हेल्प आउट कर रहा है, राइट. हमें यू नो हर वे में हमारी लिविंग को सस्टेन कर रहा है. तो क्या तकलीफ है उसको? एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट. सो सी we're gonna study today the erosion of soil, pollution of soil. ठीक है, उसके अलावा हम भी पढ़ेंगे कि आज वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है ना. हमें पता है सी देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. हमें तो सिर्फ एक पता है, वो क्या, हमारे घरों में जो आरओ लगा होता है उससे पानी भर के पी लेना. लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे मैकेनिज्म कैसा है, दूसरा कहाँ से वाटर प्यूरिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आया इतना अच्छा, है ना. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. सो यू गाइज ट्यून इन हियर. ओके, सबकी सब अपना ध्यान यहाँ फोकस करेंगे क्लास में, ठीक है ना. सो अपनी पुरानी जो क्लासेस में हमने चीजें पढ़ी हैं, जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है, यू गाइज नीड टू रिमेंबर दैट. ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चा लोग, कभी भी क्लास ओवर हो एटलीस्ट फटाफट से आंखों के नीचे से अपने नोट्स निकालो. ओके, टीटीबी का जो मटेरियल है आपको, दैट वुड हेल्प यू फर्दर. ठीक है, फिर उसके बाद आपका बेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है. ठीक है, तो बार बार आपको रिपीटेड रिवीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, सो सारे के सारे बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे, प्रॉमिस. ओके, मूविंग अहेड. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल. ठीक है, दुखद कहानी, है ना. क्या प्रॉब्लम है सॉइल को बच्चों? डिस्ट्रक्शन जो है सॉइल का वो किस किस तरीके से होता है. ठीक है, सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस. जो भी मेन आपको पॉइंट्स होंगे वो मैं हाईलाइटेड बोलूंगी. यू नीड टू फोकस मोर ऑन टू दैट थिंग. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. कलर, ओके, या सॉइल इरोजन. सबसे पहला डिस्ट्रक्शन सॉइल का जो होता है बच्चों, किसकी वजह से? इरोजन ऑफ द सॉइल. बच्चों इरोजन में क्या होता है ना, सी सॉइल का हमने क्या देखा था, जो टॉप सॉइल होता है, ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज द टॉप सॉइल, जो इसमें क्या होता है, ह्यूमस. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द सॉइल, इजंट इट, राइट. क्यों? बिकॉज इट डिसाइड्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जितना ज्यादा फर्टाइल सॉइल उतना ज्यादा क्या, उतना ही ज्यादा प्लांट्स इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे, इजंट इट. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इरोजन, यानी कि उसकी ऊपर वाली लेयर का रिमूव होना, इरोड होना. ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट. सो यहां पे वही पॉइंट है कि टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल, राइट. अगर इन केस यू नो किसी भी वजह से, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द ह्यूमंस, बट एट टाइम्स क्या होता है कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना. जैसे कि आपकी विंड्स हो गई, अगर हवा बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत तेज है, ठीक है, और कुछ भी और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना. पानी अगर वहां से कोई नदी बह रही है, ठीक है, हैवी रेन्स है, तो क्या होता है उससे कि टॉप सॉइल गेट्स कैरीड अवे. व्हाट हैपेंस इज द टॉप सॉइल गेट्स कैरीड अवे. ठीक है, तो the removal of the topsoil by either strong winds, flowing water or rain water is called as soil erosion. ठीक है, so anyways उसको बोलते हैं soil erosion. अच्छा, हमें सीरियस होना चाहिए थोड़ा सा बिकॉज ये दुखी वाली बात है. ठीक है, so okay, हम थोड़ा अच्छे से यू नो आराम वाली टोन में बात करेंगे. ठीक है, सो दिस इज सॉइल इरोजन. अब बच्चों ये मतलब अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो ये उन एरियाज में ज्यादा होता है जहां पे या तो बेयर लैंड है, मत समझ रहे हो आप, जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है ना, जहां पे कोई ट्रीज नहीं है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है. ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है ना, इरोजन ज्यादा होता है क्योंकि वहां कोई भी उसको होल्ड करने को नहीं होता.
ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज इट गेट्स कैरीड अवे। सपोज एक अच्छा खासा लैंड है, वहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि वो पेड़ जो है हवा का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। इट्स नॉट लेटिंग गो देयर, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग इज वो उस लैंड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर पानी हो जाता है, रेन्स हैवी होती है, पानी प्लांट्स जो होते हैं उसको अब्सॉर्ब करते हैं, राइट। सो सम और द अदर वे व्हाट दे आर हेल्पिंग इन इज कि वो सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट। बट देन देयर आर एरियाज व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय ट्रीज, राइट। दे आर नॉट कवर्ड बाय ट्रीज और ग्रास एंड आर बेयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इन एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन, अगर वहां पे कोई भी खेती नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा कि वहां का सॉइल जो है इरोजन को ज्यादा प्रोन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या होता है, इरोजन को ज्यादा प्रोन होता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो सॉइल लूज हो जाएगा एंड द वेरी फर्टाइल लेयर गेट्स कैरीड अवे इजीली। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट. So the roots of the plants bind together the topsoil particles and prevent soil erosion. All right, this is very important, guys. Kindly note this point कि रूट्स जो होती है ना वो उसके टॉप सॉइल को बांध के रखती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने से जो बचा रहा है, दे आर द रूट्स। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप दैट्स क्लियर। नाउ द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो बच्चों, एक तो हो गए हमारे फिजिकल फैक्टर्स कि वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी विंड होगी, रेन हो गई, ये सब की वजह से। दूसरा देखो ओवर ग्रेजिंग। बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा एनिमल्स कभी कभी क्या करते हैं, लैंड्स को ग्रेज कर जाते हैं, खा जाते हैं, यू नो, उनको चरने के लिए, हम लोग बोलते हैं ना, उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं वहां पे, ठीक है, ग्राउंड्स में, ठीक है। ग्रेजिंग जो हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा गाय बैलों का क्या घास या फिर किसी भी वेजिटेशन को खाना, उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो क्या करते हैं, सारा का सारा वेजिटेशन ही वहां से सपाचट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ऊपर का लेयर क्या हुआ, एक्सपोज हो गया, है ना, एक्सपोज हो गया, तो क्या हुआ, इरोजन को प्रोन हो गया। ऑलराइट, नाउ द सेकंड इज योर डिफॉरेस्टेशन। अगेन वी डिस्कस्ड कि प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, उनके रूट्स टॉप सॉइल को बाइंडेड रखते हैं, राइट। डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं हम लोग, सारे ट्रीज को क्या किया हमने, कट कर दिया, कोई वेजिटेशन वहां नहीं रहा, ओके। अगर कोई वेजिटेशन वहां नहीं रहा तो क्या हुआ, अगेन टॉप सॉइल एक्सपोज्ड एंड देन प्रोन टू इरोजन, इजंट इट, राइट, ठीक है। तो उसके अलावा एक्सेसिव फ्लोइंग ऑफ द फील्ड्स, एक्सेसिव फ्लोइंग ऑफ द फील्ड्स में क्या होता है ना, जैसे अगर कोई फार्मर है बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है उस लैंड को क्या करने के लिए, खेती करने के लिए, रिपीटेडली, मतलब एक क्रॉप आई नहीं कि दूसरी लगा दिया, फिर वापस से दूसरा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों कि अगर आपने देखा हो एक ट्रैक्टर से वो लोग पूरा उसको ऐसे, जिसके इस तरीके से कुछ टीथ निकले होते हैं ना, आई रियली डोंट नो, प्लाफ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट देन अगेन वो एक ऐसा ट्रैक्टर टाइप होता है एंड देन उससे वो क्या करते हैं, पूरी खाद को इस तरीके से एरेट करते हैं, राइट। पूरा उसको लैंड को क्या करेंगे, इस तरीके से स्क्रैच करेंगे प्रॉपर्ली सो दैट इट गेट्स एरेटेड वेल, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली देयर इज because of that thing, right, what happens is कि वहां से आप continuously हटाओगे, repeated क्रॉप्स के लिए करोगे, तो टॉप सॉइल जो होता है वो क्या होता है, it gets removed, isn't it? So again this leads to erosion, the excess in flowing of the field. So these three are the factors which you need to look, ठीक है। So then moving to another दुख भरी कहानी and that is the soil pollution, all right। बच्चों इरोजन से क्या हो रहा है ना, इरोजन से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देन पोल्यूशन से भी तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। सो अब सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दोस फैक्टर्स, ठीक है। बच्चों क्या होता है कि सॉइल का पोल्यूशन होगा डिफरेंट केमिकल्स की वजह से, लाइक जैसे कि कुछ अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज के थ्रू या फिर ह्यूमंस का कचरा, अगर उन्होंने, हमने कुछ वेस्ट गलत जगह डिस्पोज किया है, ठीक है, वाटर वहां पे पोल्यूटेड आ गया है विद केमिकल्स वाला, अगर ऐसा कुछ भी है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी किसमें बढ़ रही है, सॉइल के अंदर बढ़ रही है, isn't it, right? So when toxic substances, chemicals, salts, disease causing germs, okay, let me just select the highlighter,
ऑलराइट बच्चों, बिल्कुल ट्यून इन रहना है यहाँ पे, जो भी मैं पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ ना दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, सो यू नीड टू फोकस ऑन दोज पॉइंट्स स्पेशली. Chemical salts, disease causing germs which may affect the plant growth gets accumulated in the soil. Okay, so बच्चों प्लांट्स के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा. अब अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली सॉइल पोल्यूट तो हो ही रहा है, देन इरोजन को भी प्रोन है, इजंट इट? ठीक है. सो देन उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. आजकल क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो, क्या हो, एक्सेस प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना बहुत सारे केमिकल्स क्रॉप्स में ऐड करते हैं, राइट, एंड देन वो ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करता है, इजंट इट? अगर आप कोई पॉइजनस सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, सम और द अदर वे इनका इनडायरेक्ट असर हमारी हेल्थ पे भी होता है ना. बट कीड़ों से बचाने के लिए या फिर आप कैसे भी बोल सकते हो, तो व्हाट्स हैपनिंग, दीज फार्मर्स दे आर यूजिंग such chemicals, ठीक है, उसकी वजह से again there happens your pollution, right, then your direct discharge of toxic industrial waste into the soil. This is again yet another very important concern, okay, seeping of contaminated water into the soil, ठीक है, contaminated water, chemicals भरा, गंदा, okay, जो कि healthy नहीं है plants के लिए भी, ठीक है. So again उससे क्या हो रहा है, आपका पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है. देन बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट यानी कि ओवर एक्सेसिव क्वांटिटीज में, अगर आप उसको कैसे भी मान लीजिए डिकम्पोज कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन हर जगह हर चीज की अति बुरी होती है, इजंट इट? सो बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, राइट. हम उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करके करें, है ना, प्रॉपर्ली क्वांटिटीज में डिवाइड करके करें, देन प्रॉपर्ली सारी चीजें जितने भी मेजर्स हम ले सकें वो करके हम आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस, इजंट इट? ठीक है. नाउ ऑयल एंड पेट्रोलियम लीक्स फ्रॉम व्हीकल्स गेट्स वॉश्ड ऑफ ऑन द road into the surrounding soil, ठीक है. Now this is something very easy, जैसे कि vehicles से जो हमारा ऑयल पेट्रोलियम वगैरह निकला है ना, सो क्या कर रहा है अल्टीमेटली, वो सॉइल में जा रहा है. अब ऑब्वियसली सॉइल के तो किसी काम का नहीं है, केमिकल रिडन होता है, ठीक है, तो क्या होता है अल्टीमेटली, सॉइल पोल्यूशन. ऑलराइट गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो आपको ये पॉइंट्स जो है ध्यान रखने, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड पॉइंट्स स्ट्रेट फ्रॉम टीटीबी, ओके, तो दे विल रियली हेल्प यू आउट इन दैट. तो अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो. स्पेशली जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करती हूँ अपने क्लासेस में, सेशंस में, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. गेटिंग माई पॉइंट? सो आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, ओके. या so moving to the next, again सेप्टिक टैंक लीकेज, ठीक है. आप देखो अगर कहीं पे भी कोई एक टैंक है, ठीक है, इफ इट्स कैरिंग अवे समथिंग विच इज नॉट रियली गुड, ओके, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, व्हाटएवर, और कभी कभी क्या होता है अगर वो लीक कर गया तो कहाँ जा रहा है, देखो सॉइल तो भी डिस्कस्ड, इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इजंट इट? इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना. सो क्या कर रहा है अगेन, उसको वो जो है क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, राइट. सो वी नीड टू लुक एट दैट एज वेल, ठीक है. अब क्या होता है बच्चों कि अब देखो कि सॉइल पोल्यूशन की वजह से कितनी सारी लाइव्स इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है. अगर पोल्यूशन हो रहा है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. अब देखो अगर पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन अगर हो रहा है ना, सॉइल पोल्यूशन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, सॉइल पोल्यूशन की वजह से इनडायरेक्टली क्या हो रही है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस. एरो बनाने का मतलब डिक्रीज. सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट्स के लिए भी क्या होता है, ये खराब बात है ना, हार्मफुल हो गया, राइट. प्लांट्स के लिए खराब बात है. दूसरा जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्या रहते हैं सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, अगेन, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी थोड़ा सा सोबर इन दैट, बट दैट्स जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई प्रोफेशन, सो प्लीज डोंट माइंड. वैसे मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके आपको बोल के समझाऊं, है ना. सो एंड आई नो आपको समझ आता भी है, आई नो, राइट दैट, ओके. सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी भी लाइफ क्या होती है इसकी वजह से अफेक्ट. सो कैन यू सी कि सॉइल पोल्यूशन की वजह से कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, है ना,
ठीक है। सो मूविंग अहेड, हियर वी गो। अब हमने पढ़े बच्चों कि सॉइल पोल्यूशन जो है वो किस किस तरीके से होता है ना, डिस्ट्रक्शन सॉइल में क्या कैसे होता है, राइट। नाउ क्या ऐसे कोई मेथड्स हैं हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस हो? भाई ऑफ कोर्स, अगर कोई चीज किसी वजह से बिगड़ती है तो सुधारने की चीजें भी हमारे पास ही होती हैं, isn't it? Just like our habits, अगर if we are not into some good habits, then it's up to us. We can even maintain good ones also, right? We can change ourselves. So change हमेशा पॉसिबल होता है। लाइक माई फादर ऑलवेज टेल्स मी वन थिंग, ठीक है, जहां जागो वहीं सवेरा, राइट। सो जैसे जिस समय पे आप अपने आप को एकदम कॉन्शियसनेस में ले आओ, उसी समय सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं है ना। सो कैसे कैसे आप उसको कंट्रोल करते हो बच्चों? पहली बात तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिंस मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर्स में डिस्कस किया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, राइट। सबसे ज्यादा वेस्ट वहां से प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का हम ध्यान दें। क्या दें? प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, देन अडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड्स ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे कि रिसाइकलिंग, ओके, और उसके अलावा रिसाइकलिंग के अलावा आप कैसे कैसे वेस्ट मैनेज कर सकते हो, ओके, प्रॉपर उनका डिस्पोजल अलग अलग जगह पर, राइट, प्रॉपर बिन्स में उनका डिस्पोजल, है ना, इस तरीके से टेकिंग प्रॉपर केयर की कोई भी चीज जो है ऐसी हार्मफुल यूज ना हो जिससे कि सॉइल इफेक्ट हो, इजंट इट? बिकॉज सॉइल अगर अफेक्टेड है बच्चों तो इनडायरेक्टली बहुत सारी लाइव्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं, राइट, वी सॉ इट, है ना। देन रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बैग, क्लॉथ, पेपर एक्सेट्रा, दिस समथिंग वी ऑल नो। ओके, मूविंग अहेड टू पानी कैसे साफ करते हैं, है ना, प्योरिफिकेशन कैसे होता है बच्चों। वाटर प्योरिफिकेशन इज वेरी 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 एसेंशियल, है ना, बहुत ज्यादा। देखो बच्चों, वाई? बिकॉज सी देयर आर मेनी फैमिलीज किड्स, ओके, देयर आर मेनी फैमिलीज, हमें पता है बहुत पुअर फैमिलीज भी होती हैं, है ना। सो हर कोई आरओ तो अफोर्ड नहीं कर सकता है घर में, राइट। कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली नदियों का पानी पीते हैं, है ना, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कम्युनिटी वाटर सप्लाई जो होता है, विच इज़ अगेन यू नो जो एक हाई लेवल पे फिल्टर होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे की इमेज देख सकते हो ना, ये एक वाटर प्योरिफिकेशन का मेथड है जो कि कम्युनिटी लेवल पे होता है ना, यानी कि उन पॉपुलेशन के लिए ऑल ओवर। हमारे पास जो पानी आता है घर में वो कहाँ से आता है? कम्युनिटी वाटर सप्लाई से, ऑल राइट। उसको फिर अगेन गेट्स, हमारे घरों में सब में आरओ होता ही है, वाटर प्योरीफाई होता है, अगेन उससे प्योरीफाई अगेन वी व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इज वी आर डबल प्योरीफाइंग इट, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे जो पानी प्योरीफाई हो रहा है बच्चों, हम लोग को लगता है ठीक है, यू नो, इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बिकॉज वो बोलते हैं डायरेक्ट पानी वहाँ से आ रहा है, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी यूज आरओ वाटर प्योरीफायर्स एट आवर प्लेसेस, बट देन अगेन देयर आर फैमिलीज, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, इजंट इट। जो लोग स्लम एरियाज में रहते हैं वो लोग तो इंटायरली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? इनके ऊपर, राइट। बट द थिंग इज दैट गवर्नमेंट तो सबका सोच के चलती है, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, वी टॉक अबाउट हेल्थ ऑफ ऑल, इजंट इट। और पानी जो है बच्चों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्योरीफाइड पीना, क्योंकि वी ऑल नो कि उससे बहुत तरीके के डिजीजेस फैलते हैं, राइट। सो वाटर प्योरीफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पहला ये स्टेप देख रहे हो ना, इज अ प्योरीफिकेशन ऑफ रिवर और लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। किसके लिए? फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। कौन सा है ये बच्चों? ये प्योरीफिकेशन ऑफ रिवर लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ऑलराइट। देखो सबसे पहले तो ये जो नदी बहती हुई दिख रही है, ठीक है, उससे क्या हुआ है? उस पानी को लिया गया है, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट सेलेक्ट अ पेन एंड देन आई लेट यू नो, ओके। या देखो ये रिवर है, रिवर से पानी लिया गया कहाँ पे? एक पंपिंग स्टेशन में। ये आपका पंपिंग स्टेशन, यहाँ पे क्या किया इसने? पानी को पंप किया। क्या किया? पानी को उस रिवर से कलेक्ट करके पंप किया। देन देयर इज सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे पानी रखा जाता है, तो जो मोटा मोटा कचरा होता है ना, मोटी मोटी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? नीचे सेडिमेंट हो जाती है, यानी कि नीचे समा जाती है, ओके। तो उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर है, मिट्टी यहाँ पर आ गई, ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर है इट वुड गो इनटू सैंड एंड ग्रेवल टैंक, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके अंदर से होते हुए जाएगा सैंड फिल्ट्रेशन पे, ठीक है।
सैंड फिल्ट्रेशन के बाद होगा ये एरेशन चैम्बर में, ठीक है, यहाँ पे इसका फर्दर मोर प्योरिफिकेशन होता है, ऑल राइट, एंड देन क्लोरिनेशन, ओके, क्लोरिनेशन के बाद ये जाता है आपके इस टैंक में एंड देन इधर एंड देन मूविंग टू योर पब्लिक सप्लाईज. गेटिंग माय पॉइंट? आई होप दिस क्लियर. सी दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एंटायर डायग्राम, बट आपको जो है ये जो है स्टेप्स, पंपिंग स्टेशन टू सेडिमेंटेशन टैंक, देन here to your sand and gravel, then to your sand filter, aeration, then your chlorination and then out. Okay, बस ये थोड़ा सा आपको स्टेप्स याद करने की जरूरत है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. यू शुड जस्ट नो कि कम्युनिटी से के लिए जो वाटर प्योरिफिकेशन हो रहा है वो एग्जैक्टली किन किन लेवल पे कैसे स्टेजेस पे हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ अब देखो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए बच्चों काफ़ी सारे टेक्निक्स जो हैं वो प्रपोज्ड हैं. क्या है? बहुत सारे टेक्निक्स आर प्रपोज्ड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, impure water can be purified by various methods, ठीक है, by वेरियस मेथड्स. कौन कौन से बच्चों? FDS, ठीक है. हाउ कैन यू रिमेंबर दिस थ्योरी? FDS, व्हाट इज दैट? फिल्टरेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन, FD distillation, S sedimentation. Getting my point? ठीक है, filtration, distillation and then sedimentation, ठीक है. अब बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों? इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज होती हैं, कौन सी? इनसोल्यूबल, जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होती. एग्जैक्टली उसमें क्या करते हैं हम लोग कि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को एक मतलब हम इस तरीके की एक फिल्टर होता है, ठीक है, कैसा? एक फिल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है. अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हाउ फिल्टर पेपर व्हाट ऑल. यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये है कि देयर इज अ फिल्ट्रेशन पेपर, उसके थ्रू हम जो है पानी को मतलब गो थ्रू करवाते हैं, ओके, उसको वहां से हम लोग निकलवाएंगे, ठीक है, ऑन अ कमर्शियल स्केल. देन व्हाट विल हैपन इज कि जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है ना, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सैंड पार्टिकल्स हो गए, थोड़े बहुत कुछ बड़े बड़े अगर कोई कीड़े हैं, ऐसा कुछ है, इंसेक्ट्स, ओके, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और व्हाटएवर इट इज, सो इट गेट्स प्योरिफाइड, ओके, वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है. तो यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है? इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, ठीक है, एंड देन योर फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज बाय पासिंग इम्प्योर वाटर थ्रू अ फिल्टर और अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड filtration. Getting my point, right? ठीक है, easy सा है ना. Then comes the sedimentation and decantation. Sedimentation होगा पहले, क्या होगा? पहले क्या होगा? Sedimentation होगा, उसके बाद होगा आपका decantation, ठीक है ना. अब बच्चों ये कैसे होता है? Just a minute, sorry. ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों कि इम्प्योर वाटर जो होता है ना, इम्प्योर वाटर होगा, उसको एक हम लोग किसी भी एक कंटेनर में भर के रख देते हैं, ठीक है, भर के रख देते हैं. तो क्या होता है दैट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो धीरे धीरे क्या होती है? नीचे क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी. धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी. नोट, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू गाइज, ऑलराइट, सो जस्ट होल्ड ऑन. या ठीक है, ये देखो इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिया, टैंक लिया, ऑलराइट. सो सॉरी दिस पेन थिंग, कभी कभी इट क्रिएट्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम. एनीवेज, चलो मैं इससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे इसमें अंदर क्या हुआ? बहुत सारा वाटर, ठीक है, हमने यहाँ वाटर भर दिया. अब क्या होगी बच्चों? ये जो इम्प्योरिटीज होंगी ना इसमें, ठीक है, ये इम्प्योरिटीज क्या होंगी? आपने कुछ टाइम के लिए इसको यहाँ पे रखा अगर, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे आके स्लोली वो जो है सेटल आउट हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है, धीरे धीरे. तो ये क्या हुआ आपका? सेडिमेंटेशन, ठीक है, विच अलाउज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज such as mud to settle at the bottom, ठीक है, as sediments. तो इसको हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sediments, ठीक है,
क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे आई उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेडिमेंट्स। क्या बोला, सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्लीन वाटर है, ठीक है, ये क्लीन वाटर जो है ना, ये गंदगी आ गई यहाँ पे क्लीन वाटर रहा। अब इस क्लीन वाटर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू अ क्लीन कंटेनर बाय द प्रोसेस ऑफ डीकैंटेशन। उसके बाद हम इसको एक क्लीनर एक और कंटेनर में वील ट्रांसफर इट एंड दैट इज कॉल्ड एज डीकैंटेशन। ऑलराइट, सो आई होप दिस FDS is clear to you, ठीक है ना। Now moving to the other process and that is distillation. So before that I'll just select the highlighter for you guys, so this is important. All right, now distillation बच्चों इसमें क्या होता है ना, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि सबसे पहले हम लोग पानी को जो है वो बॉईल करते हैं, उसके कहाँ तक, जो इम्प्योर वाटर है, impure water को what we did was heated to the boiling point to convert water into steam, ठीक है। हम उस water को boil करना start करेंगे, ठीक है, in order to convert the water into steam। उसके बाद द स्टीम जो है, स्टीम को हम पास करेंगे, वो जो स्टीम बना, भाप जो बना, ठीक है, उस भाप को हम लोग पास करते हैं कहाँ, पास्ड थ्रू अ कंडेंसर, ठीक है। और उस कंडेंसर में वो क्या होगी, इट कूल्स एंड चेंजेस बैक इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है। क्या हुआ, कंडेंसर एंड चेंजेस बैक इनटू लिक्विड वाटर। पानी को हमने क्या किया, फटाफट हम रिकॉल करेंगे, पानी को हमने बॉईल किया, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट अप किया, तो जो स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम को हमने कलेक्ट किया, उसके बाद हमने भेजा कहाँ पे, ठीक है, और इम्प्योरिटीज तो वहां की वहीं छूट गई, राइट, कंटेनर में। उसके बाद स्टीम को हमने भेजा कहाँ, कंडेंसर में, जहां पे वो कूल डाउन होगा एंड देन दैट वाटर इज सेफ फॉर आवर कंजम्पशन। ऑलराइट, ठीक है, सो दिस वाज योर डिस्टिलेशन। अब देखो सबसे ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पे है हमारा जो काम का है, जो हम लोग वी शुड बी वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट, लाइक कि घरों में हम डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हाउ डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशन, भाई इससे ज्यादा लोगों को मतलब होता है ना, इजंट इट, ठीक है। हाउ डू वी डू दैट, तो वी हैव गॉट फिजिकल एंड वी हैव गॉट केमिकल मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स, वी हैव गॉट 2 types of method, that is your physical methods and then your chemical methods। बच्चों पुराने जमाने में क्या होता था ना, देखो ये प्योरीफायर्स एंड ऑल तो अभी आया है, राइट। पुराने जमाने में देयर वर नो प्योरीफायर्स, नथिंग। तो कैसे वहां पे उस समय पे हमें क्या प्रोसेसेस होती थी, what were the processes जिससे कि पानी फिल्टर होता था। तो सबसे बड़ा अच्छा पुराना जो तरीका है वाटर फिल्ट्रेशन का वो है ये, क्या, स्पेशल वाटर फिल्टर्स और प्योरीफायर्स आर नाउअडेज यूज्ड in schools, offices and homes, लेकिन the simplest, which one, simplest forms, here, just a minute, yeah, so the simplest forms of domestic water, the simplest forms of domestic water filter consists of a porous pot made of clay or ceramic, ठीक है। porous pot, porous क्या होता है बच्चों, जिसमें थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ क्या होते हैं, छेद होते हैं थोड़े से, है ना, it's actually not stiff, ठीक है, पोरस होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे, छोटे से यहाँ पे छेद होंगे, ओके, पोरस उसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो पोरस पार्ट है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, ठीक है ना, उसके ऊपर से क्या है, पानी पास आउट होता है, ऑलराइट, है ना, सो एक्ट्स एज अ फिल्टर। और उसके अलावा ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि सारी की सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होती हैं पानी में, ठीक है, उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, रिमूव करता है। तो अब भाई बहुत ज्यादा हम बोलेंगे हाईटेक टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एटलीस्ट जो विजिबल इंप्योरिटीज होती थी उसको ये जरूर रिमूव कर देता था, है ना, क्योंकि पुराने जमाने में आरओ प्योरीफायर्स तो थे नहीं, राइट। सो बट हाँ इतना ध्यान दिया जाता था कि ये जो फिल्टर होता था ना यहाँ पे, ये पॉट्स जो हैं, राइट, सो उनको जो है टाइमली क्लीन किया जाए। अब बच्चों देखो यहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए कितनी अच्छी चीजें यूज की जाती थी, राइट, जिसके थ्रू फिल्टर्स किसके बनाए जाते थे, उन पॉट्स में वो पोरस फिल्टर्स किसके बनाए जाते थे। पहले जैसे ये 4 पॉट्स का एक स्टैक है ना, यहाँ पे पानी डाला जाता था, यहाँ पे उसके बेस पे होता था ग्रेवल, ठीक है, फिर दूसरा जो लेयर होता था वो होता था सैंड का यहाँ पे, ठीक है, तीसरा जो होता था वो होता था चारकोल, और फाइनली यहाँ पे हमारा साफ पानी आ जाता था,
ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ट्रेडिशनल सैंड फिल्टरिंग टेक्निक फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एट द डोमेस्टिक लेवल। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे भी हम लोग जो है एक तरीके से मतलब आज भी कुछ लेवल पे ऐसा होता है कि सैंड फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? ट्रेडिशनल सैंड फिल्टरिंग टेक्निक। कौन सी वाली? ट्रेडिशनल। व्हाई डिड वी कॉल इट एज ट्रेडिशनल? क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आज के जो हमारे यूज हो रहे हैं ना, आज जो हमारे आरओ प्यूरिफायर्स वगैरह यूज होते हैं उसका यूज नहीं है। ठीक है, सो काइंड ऑफ ओल्डर वर्जन आप बोल सकते हो इसका। ठीक है, तो वो यहाँ पे टेक्निक यूज होती है। ठीक है, सो इट्स येट अनदर टेक्निक इज ट्रेडिशनल सैंड फिल्टरेशन। ठीक है, एट डोमेस्टिक लेवल, एंड देयर कम्स द मोस्ट हाइप्ड थिंग जो आजकल ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रही है। ठीक है, सो इनफैक्ट जो लोग मतलब हर नॉर्मल से नॉर्मल घर में आपको एक वाटर प्यूरिफायर आरओ जिसको हम लोग बोलते हैं मिल ही जाता है। ठीक है बच्चों, आरओ में क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरओ? दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, क्या बोलते हैं आरओ को? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑलराइट, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड in such purifiers. Getting my point? कहाँ पे यूज हो रहे हैं? डोमेस्टिक लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना बच्चों, कैसा भी आप पानी जो है उसको फिल्टर या प्योर करके यूज कर सकते हो। ये सी वाटर भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट जैसे कुछ प्लेसेस हैं। ओके, सो वहां का क्या होता है ना, पानी ही खारा होता है। बोलते हैं ना कि पानी बहुत खारा है, लाइक सॉल्टी है, टेस्ट ऑल्टर्ड है। ठीक है, आरओ क्या कर देता है, उसको पूरा स्टेबलाइज कर देता है। ओके, सो इट्स एन अमेजिंग इन्वेंशन व्हेन इट कम्स टू वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज फिटेड विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमिएबल? मतलब कि सेमी परमिएबल मतलब कि जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल, इजंट इट? यानी कि सेलेक्टेड कंटेंट्स का अपने से पैसेज अलाउ करना। ओके, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एंड देन अ हाई प्रेशर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55 to 85 बार। हाउ मच? 55 to 80 बार इज अप्लाइड। ठीक है, तो इतना प्रेशर से पानी जो है उस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर कितना होगा? 55 to 85 बार की रेंज के विद इन, है ना। अब उससे क्या होता है कि वहां से उस मेम्ब्रेन से पानी फिर पास आउट होता है, तो कैसा निकलता है बच्चों? प्योर होके। ठीक है, फिल्टर होके। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आरओ वाटर प्योरीफायर। ठीक है, अब बच्चों दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, है ना। ये क्या होता है बच्चों की देखो, पानी से वी नो दैट हमें बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, इजंट इट? बहुत ज्यादा, है ना। सो बेसिकली इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, है ना, जो अगर हमारी बॉडी में गए तो क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिसिटी किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है हमारी बॉडी में? डिजीजेस के फॉर्म में, राइट। कौन से ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में हम लोग अनइंटेंशनली या अननोइंगली ले लेते हैं, राइट, जिसकी वजह से सी वाटर प्योरिफिकेशन जो है इसलिए भी बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि वाटर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, राइट। सो वी नीड टू फिल्टर इट। व्हाई? बिकॉज इट कॉजेज सर्टेन डिजीजेस इन अस, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सी। अगर मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, उससे कौन सा डिजीज हमारे अंदर हो सकता है? मिनामाटा डिजीज। विच वन? मिनामाटा। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके, आई विल जस्ट सेलेक्ट इट हियर। सो मिनामाटा डिजीज। कैडमियम अगर अंदर चला गया तो क्या होगा? इटाई डिजीज। कौन सी? इटाई डिजीज, राइट। फ्लोराइड गया तो स्केलेटल फ्लोरोसिस। ओके, फ्लोराइड से तो इजीली आप समझ पाओगे, फ्लोराइड से क्या हुआ बच्चों? फ्लोरोसिस। एंड विच वन? स्केलेटल फ्लोरोसिस। देन यू गॉट आर्सेनिक। आर्सेनिक से होगा आपका ब्लैक फुट डिजीज। ओके, कौन सा? ब्लैक फुट डिजीज। और अगर बहुत ज्यादा नाइट्रेट्स चले गए, ठीक है, क्या होगा? बहुत ज्यादा अगर नाइट्रेट्स चले गए तो हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीला पड़ जाता है इंसान। ओके, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू गाइज। बच्चों, ये डिजीजेस जो हैं इन एलिमेंट्स के साथ साथ आपको ध्यान रखने की, अगर ये एलिमेंट हमारी बॉडी में एक्सेस में चला गया तो हमारी बॉडी में क्या मैनिफेस्टेशन डिजीज के फॉर्म में हो सकता है। इंपॉर्टेंट वन, सो यू शुड बी नोटिंग इट। ऑलराइट, सो हियर वी रैप अप विद दिस सेशन अगेन। ठीक है, कुछ भी ऐसा पॉइंट है अगर आपको समझ में नहीं आता, यू कैन जस्ट गेट बैक
Alright, TTB's team is always there to help you out. Okay, and बाकी रही इस वीडियो को लाइक करने की बात. So if you liked it, if you like the way I teach you, okay, I'm always open up to your suggestions, your feedbacks. I love hearing it from all of my kids. Loads of love to you guys. If you like this video, do hit that like button and do subscribe to the channel of TTB, and also also hit this bell icon so that you do not miss any important updates, especially the videos from me. Okay? And so yeah, here I take alvida from all my lovely kids. Bye bye, see you soon.